Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School, e-learning, class 5th, subject social studies, chapter number 2, physical regions, reading and explanation, part 1. I am your teacher Salma Safdar. Now students, open your book at page 14, hold your pencils in your hands and write meanings with me. Physical regions means Tabai Khitta. Now students, come to page number 15 on moving towards region. Region means khitta, the area where geographical, social and cultural environment is common is called a region. For example, equatorial region, polar region, Mediterranean Sea region. Area means ilaka, geographical means जोग्राफियाई, social means समाजी, एक ऐसा इलाका जहाँ पर जोग्राफियाई, समाजी और सकाफती हालात यकसां हों खित्ता कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल इस्तवाई खित्ता, कुतुबी खित्ता, बहीरा रोम का खित्ता या इलाका वगैरह. Okay, now we will study about physical region. Physical region means tabai khadokhal, the area where physical features, climate, temperature, rain, soil and altitude are almost the same is called physical region. ऐसा इलाका जहाँ पर तबई खदोखाल, आबो हवा, दर्जा हरारत, बारिश, सतह समुंदर से बुलंदी तकरीबन यकसां हो तबई खिता कहलाता है. Now we will talk about physical regions of Pakistan. Physical regions of Pakistan means पाकिस्तान के तबई खित्ते. Physical features of Pakistan contain many variations. Variations means फ़र्क. पाकिस्तान के तबई खदोखाल में बहुत फ़र्क पाया जाता है. For instance, the world's highest mountain ranges in north and the northwest. On the other hand, plains and plateaus. Plateaus means सतह मुर्तफ़ा in the middle and coastal areas are located in the south. अगर शुमाल और शुमाल मगरब में दुनिया के बुलंद बाला पहाड़ी सिलसिले हैं तो वस्त में मैदान और सतह मुर्तफ़ा और जनूब में साहिली इलाके हैं. पाकिस्तान कैन फिज़िकली बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग रीजन्स. पाकिस्तान को तबई लिहाज से मंदरजा झेल खित्तों में तकसीम किया जा सकता है. नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट द फिज़िकल मैप ऑफ पाकिस्तान. You can see here Afghanistan. Afghanistan is located in Central Asia, Iran to the west and Pakistan to east. China is located in East Asia, whereas India is a vast country in southern portion of Asia. Iran is located in West Asia. Now students, come to page number 16, mountainous regions. Mountainous region means pahadi khitta. The world's highest mountain ranges Karakoram, Himalayas and Hindu Kush are located in north and northwest of Pakistan. पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मगरब में दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले कोहे कराकोरम, कोहे हिमालय और कोहे हिंदू कश वाक़या हैं. The world's second highest peak K2 is located in the same mountainous region. दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 भी इसी पहाड़ी खित्ते में वाक़या है. With heavy snowfall in winter, these mountains are covered with snow throughout the year. इन पहाड़ों पर मौसम सरमा में बर्फ़बारी होती है और उसकी बुलंद चोटियाँ सारा साल बर्फ़ से ढकी रहती हैं. कोहे सफ़ेद, वाइट माउंटेन, माउंटेन रेंजेस ऑफ वज़ीरिस्तान, कोहे सुलेमान एंड केरथार mountain ranges are located in northwest. पाकिस्तान के शुमाल मगरब में कोहे सफ़ेद, वज़ीरिस्तान के पहाड़ी सिलसिले कोहे सुलेमान और केरथर के पहाड़ी सिलसिले वाक़या हैं. कोहे सफ़ेद वाइट माउंटेन इज़ एक्सटेंडेड टू कुरम एजेंसी. वज़ीरिस्तान माउंटेन रेंजेस टू द नॉर्थ एंड वेस्ट वज़ीरिस्तान, while कोहे सुलेमान एंड कोहे केरथर reach the Arabian Sea in the east of Balochistan. These mountains are a natural barrier line between Pakistan and Afghanistan. कोहे सफ़ेद, कुरम एजेंसी, वज़ीरिस्तान के पहाड़ी सिलसिले शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, कोहे सुलेमान और कोहे केरथर बलूचिस्तान के मशरक़ में बहीरा अरब तक फैले हुए हैं. ये पहाड़ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कुदरती सरहद हैं. Now students, look at the pictures. Nanga पर्वत, it is a mountain in Asia. Tirch Mir, it is the highest mountain in the world, whereas K2, it is the world's second highest peak. Now students, come to page number 17. The residents means रहने वाले of these mountains are hard working. इन पहाड़ों में रहने वाले लोग जफाकश हैं. Most of them earn their livelihoods through cattle rearing
horticulture and limited agriculture. People of some other places of the world, that is Nepal, Bhutan and northern India, also have a similar livelihood. और उनका ज़रिया माश मवेशी पालना, बागबानी और महदूद पैमाने पर खेती बाड़ी है। दुनिया के बाज़ ख़ित्तों फॉर एग्ज़ाम्पल नेपाल, भूटान और शुमाली भारत में लोगों का तर्ज माश भी इसी तरह का है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस प्लेन रीजन। प्लेन रीजन मीन्स मैदानी ख़ित्ता। दिस इज़ द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का सबसे ज़रखेज़ इलाका है। द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज मीन्स माउन दरिया, दैट इज़ सतलज, रावी, चेनाब एंड जहलम फ्लो इन दिस रीजन। इस इलाके में दरियाए सिंध और उसके माउन दरिया सतलज, रावी, चेनाब और जहलम बहते हैं। दीज रिवर्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर। इन दरियाओं में साल भर पानी बहता रहता है। Canals are taken out of them by building barrages on suitable places. इन पर मुनासिब मकामात पर बंद बांधकर नहरें निकाली गई हैं। दिस रीजन हैज़ फर्टाइल सॉयल। ये खित्ता ज़रखेज़ मट्टी से बना हुआ है। मैनी लार्ज कैनाल्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड हेयर। यहाँ बड़ी बड़ी नहरें निकाली गई हैं। These are the best source of irrigation, जो आपाशी का बेहतरीन ज़रिया हैं। The once desert areas of खैरपुर and हैदराबाद have become fertile due to these canals. खैरपुर और हैदराबाद डिवीज़न के इलाके पहले बंजर रेगिस्तान थे, मगर अब नहरों की वजह से आबाद और सरसब्ज हो गए हैं। Plain regions are densely populated. For example, big cities like Lahore, Faisalabad, Multan and Hyderabad are situated in these plain areas. मैदानी इलाकों में आबादी बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े शहर फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और हैदराबाद इसी मैदानी इलाकों में वाक़या हैं। You can see the clear picture of plain region on your book. Now students, come to page number 18. Most of the people in these areas earn their livelihood through agriculture. Agriculture means zaraat, industries and trade. These areas are comparatively developed. The similar agricultural, industrial, financial activities are in practice in the plains of Nile River in Egypt. इन शहरों में सनतकारी और तजारत से बहुत से लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। ये इलाके सहूलियात के लिहाज से तरक्की याफ्ता हैं। मिस्र में दरियाए नील के मैदानी इलाकों में इसी तरह की काश्तकारी, सनती और तजारती सरगर्मियाँ होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट प्लेटो। प्लेटो मीन्स सतह मुर्तफ़ा, अ हाई एंड फ्लैट एरिया ऑफ द लैंड हैविंग एट लीस्ट वन शार्प स्लोप इज़ कॉल्ड प्लेटो। There are two plateaus in Pakistan, Potohar Plateau and Balochistan Plateau. ज़मीन की ऊंची और तकरीबन हमवार सतह जिसके कम से कम एक तरफ अमूदी ढलवान हो सतह मुर्तफ़ा कहलाती है। पाकिस्तान में दो सतह मुर्तफ़ा हैं, सतह मुर्तफ़ा पोठोहार, सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान। You can see clear pictures of Potohar Plateau and Balochistan Plateau on your book. Now students, come to page number 19. Potohar Plateau is located between the Indus and Jhelum rivers. It is a dry land. Rawalpindi, Islamabad, Jhelum and Chakwal are located in this plateau. सतह मुर्तफ़ा पोटोहार दरियाए सिंध और दरियाए जहलम के दरमियान वाक़या है। ये खुश्क इलाका है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जहलम और चकवाल के मशहूर शहर इस सतह मुर्तफ़ा में वाक़या हैं। बलूचिस्तान प्लेटो रीचेस ईरान इन द वेस्ट एंड अफ़गानिस्तान इन द नॉर्थ। सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान मग़रिब में ईरान और शुमाल में अफ़गानिस्तान से जा मिलता है। इट इज़ अ रफ एंड रॉकी एरिया. रेन इज़ रेयर इन दिस एरिया. अंडरग्राउंड कैनाल्स हैव बीन बिल्ड इन सम एरियाज़. दीज कैनाल्स आर कॉल्ड कारेज़. यहाँ की ज़मीन पथरीली है और सारा इलाका खुश्क है। बारिश बहुत कम होती है। कहीं कहीं ज़मीन में नहरें बनाई गई हैं जिन्हें कारेज़ कहते हैं। दे आर यूज्ड फॉर कल्टिवेशन. रेयर स्पेल्स ऑफ rain are observed here in winter. Pakistan's plateaus means Sata Murtafa, are rich in minerals.
इनसे खेतों को सैराब किया जाता है। मौसम सरमा में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। पाकिस्तान के सतह मरतफ़ा मादनी वसाइल से माला माल है। माइनिंग इज़ द मेन प्रोफेशन हेयर एंड पॉपुलेशन इज़ लेस दैन द अदर प्लेसेस। कानकुनी अहम पेशा है जबकि आबादी दूसरे खित्तों की निस्बत कम है। द तिब्बत प्लेटो इज़ लोकेटेड इन चाइना। सतह मरतफ़ा तिब्बत चीन में वाक़या है। पीपल लिविंग here are related to the professions of mining and farming just like in Pakistan। यहाँ पर भी पाकिस्तानी सतह मरतफ़ा की तरह आबादी कम है और ज़राअत और कानकुनी अहम पेशा है। You can see clear picture of Tibet Plateau on your book। Now students, come to page number 20. We will study about coastal area. Coastal area means Sahili Khitta। Coastal area along with the Arabian Sea is located in the south of Pakistan। पाकिस्तान के जनूब में बहीरा अरब के साथ साथ साहिली खित्ता वाक़या है। It is widely spread from Karachi towards Balochistan in the west। ये खित्ता कराची के करीब से शुरू होकर मगरिब की तरफ बलूचिस्तान के साहिली इलाके तक फैला हुआ है। कराची इज़ अ नेचुरल पोर्ट बिकॉज इट्स बीच इज़ टोन अप। कराची एक कुदरती बंदरगाह है क्योंकि इसका साहिल कटा फटा है। अ लार्ज पोर्ट बिन कासिम हैज़ ऑलरेडी बीन बिल्ट हेयर। यहाँ पर करीब ही एक और बड़ी बंदरगाह बिन कासिम के नाम से बनाई गई है। Work on another big and modern port, Gawadar, is under progress in Balochistan। गवादर में भी एक बड़ी और जदीद बंदरगाह ने काम शुरू किया है। Coastal areas are important business hub। साहिली इलाके तिजारती सरगर्मियों का अहम मरकज़ हैं। बीच एरियाज़ आर डेंसली पॉपुलेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में ज़्यादातर आबादी साहिली इलाकों में आबाद हैं। For example, the countries at the shores of North America, Australia and Africa। मसलन शुमाली अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के साहिल ममालिक। Similar trade activities mean सरगर्मियाँ take place in such countries। इन ममालिक में मुख्तलिफ़ किस्म की तिजारती सरगर्मियाँ होती हैं। You can see the clear pictures of Karachi city, coastal area and seaport on your book। Now students, come to page number 21. We will study about desert. Desert means Sahrai Khitta। Some locations of our country are dry and almost unpopulated। Unpopulated means ghair abad। Neither cultivation nor cattle rearing is possible due to lack of water and irrigation in these areas। Such areas are called deserts or sandy areas। हमारे मुल्क के कुछ इलाके बारिश की कमी की वजह से खुश्क और गैर आबाद हैं। पानी की कमी की वजह से यहाँ फसलें नहीं उगाई जा सकती और ना ही जानवर पाले जा सकते हैं। ऐसे इलाकों को सहरा या रेगिस्तान कहते हैं। फॉलोइंग आर द डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मशहूर सहराई इलाके मुंदरजा ज़ेल हैं। नंबर 1 थल डेजर्ट पंजाब। नंबर 2 चोलिस्तान डेजर्ट पंजाब। नंबर 3 थर डेजर्ट सिंध। द लास्ट वन इज़ खारान डेजर्ट बलूचिस्तान। सहराए थल, सहराए चोलिस्तान पंजाब, सहराए थर सूबा सिंध, सहराए खारान सूबे बलूचिस्तान। Now students, this is the end of part 1. We will do reading and explanation of this chapter in next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.